نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور انگنت درود و سلام ہوا اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد علیہ السلام ہے. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے تحمل یعنی برداشت کرنے کی کیا فضائل ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، کیا کچھ اس نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تحمل، برداشت، صبر کن مواقع پہ کرنا چاہیے، کچھ ان مقامات کا ذکر کیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں، بات یہ آئی تھی کہ یہ تحمل جو ہے، برداشت کرنے کا جو ایک عظیم صفت ہے، انسان اس سے لیس ہو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ٹل جاتے ہیں اور بہت سارے تنازع اختلاف کا حل ہو جاتا ہے. تو وہیں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن مواقع پر خاص طور سے ہمیں تحمل، برداشت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے. کہ ہم سے کسی سے معاہدہ ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا کسی معاملے پر، خاص ہو مسلمان یا غیر مسلمین کے درمیان ہو یا مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہو، عہد و پیمان کو برقرار رکھنا، اس کو پائے تکمیل پہنچانا. اگر عہد کیا ہے تو اس کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس کے نہ پورا کرنے کے نتیجے میں ہم سے بات گشت ہوگی، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہمارا جو شکنجہ کسا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ عہد کیا تھا، یہ عہد و پیمان کیا تھا، تم نے پورا کیوں نہیں کیا؟ ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی عہد و پیمان انجام پذیر ہوتے ہیں، جو بھی کسی کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے، تو اس معاہدے کے تعلق سے ضرور پوچھا جائے گا آیا تم نے اس کو نبھایا یا کہ تم نے اس کو نبھا نہ کر کے اس میں حق تلفی کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اور یہ غیر مسلم کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ اس کو اس پیمانے میں سمجھیں گے کہ وہ سلطنت جو ہے، جو حکومت ہے، وہ مسلم حکومت ہے اور اس کے ماتحتی میں کچھ غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو اس جو ہے مسلم حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جو اس کے ماتحت رہ رہے ہیں غیر مسلم، وہ کسی طرح کا فتنہ فساد نہیں بقا کر رہے ہیں، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس مسلم حکمران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تمام تر احسانات کرے اور احسانات کے ساتھ ساتھ ان کا مکمل طور پہ نگہبانی کرے، ان کی محافظت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے
انہیں کسی طرح کی کوئی سرزنش نہ پہنچ پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی اور ایک انداز میں پھٹکار کہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی عہد و پیمان کیے ہوئے شخص کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہ جو کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے، کسی عہد و پیمان کیا ہے، اس کو موت کے بھاگ اتار دیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یری رائحۃ الجنہ، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فإن ریحها توجب من مسیرۃ 70 عاما، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہوگی وہ 40 سال کے مسافت کی دور سے آ رہی ہوگی۔ کوئی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10-20 کلومیٹر کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ 40 سال کی جو مسافت ہوتی ہے، 40 سال میں ہم جتنا طے کر سکتے ہیں، کسی سرزمین کو طے کر سکتے ہیں، وہاں تک جا سکتے ہیں، وہاں سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی اور لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ لیکن ایسا شخص جس نے کسی معاہد کو کسی سے عہد و پیمان کیا تھا، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، اور اس کو دھوکے میں آ کر کے اس کو قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، تو اس کا یہ انجام ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا ہے۔ کب ہونا ہے؟ وہ جب جو ہے اس دار پانی سے پوچھ کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تو پہلا مقام کیا معلوم ہوا کہ پہلا جو جگہ ہے، مقام ہے کہ کسی سے عہد و پیمان کیا ہے ہم نے، تو اس کو ہم نبھائیں، اس کو ہم پورا کریں، ہم اس میں غلط رویے سے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسرا جو مقام ہے کہ عہد و پیمان تحمل برداشت کرنے کی جو ہمیں صفت ہونی چاہیے، ہم کسی کو کیسے جھیلیں، کسی کو کیسے برداشت کریں۔ دوسرا مقام کہ لسانی زبان کے ناحیے سے یا اسی طریقے سے نسل کے ناحیے سے یا علاقے کے ناحیے سے انسان میں ہوتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ برادری ہے اور زبان اس کی ملیالم ہے یا ایک تیلگو ہے، یعنی دوسری زبان کا جاننے والا ہے، ہم ہندی زبان کے جاننے والے ہیں، فلاں فارسی کا جاننے والا ہے، تو اس نتیجے میں ہم ایک جٹ ہو کر کے اس سے نفرت کرنے لگے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کسی خطے کا رہنے والا ہے، کسی علاقے کا رہنے والا ہے، ہم کسی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس سے عداوت کریں، اس سے ہم کسی طریقے سے بغض رکھیں، بلکہ اللہ کے نبی کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں نہیں کہا رب العالمین نے، رب العالمین نے کہا اے مومنوں نہیں کہا، نہ مسلمانوں کہا، بلکہ عام پیغام دیا، عام اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگوں، تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ کس سے؟ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا گیا، لتعارفوا، جھگڑنے کے لیے، چونی اوپر کرنے کے لیے نہیں، اپنا جو ہے اپنے آپ کو اوپر کرانے کے لیے نہیں، اپنی پیشانی کو آگے اپنی ناک اٹھانے کے لیے نہیں، یہ معاملہ کرنے کے لیے نہیں کہ میں تو بڑا برادری سے ہوں تو میرا تمغہ بڑا ہونا چاہیے، ہمارا ٹائٹل سب سے آگے ہونا چاہیے، میں بڑا علاقے سے ہوں تو میرا ٹائٹل لمبا ہونا چاہیے، ہمیں بڑا چسپا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اس لیے ہم نے تم کو شعبوں میں تبدیل کر دیا، قبیلوں میں تبدیل کر دیا، بڑا قریشی ہے، بڑا یہ ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہیں تو ایک جیسے ہو جائیں گے تو لوگ پہچان نہیں پائیں گے۔ تو محض یہ پہچاننے کے ہی حد تک ہے، یہ برتری کے لیے نہیں ہے، فوقیت کے لیے نہیں ہے کہ کسی پر فائد بتانا، کسی پر اپنی برتری کا اظہار کرنا، فخر و مباحات کرنا، اگر جانا سینہ تان لینا، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، رب کے نگاہوں میں اگر کوئی مکرم ہے، باعزت ہے، محترم ہے اور بڑا ہے تو کون ہے؟ اتقاکم، جو تقوی شعار ہو، جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہو، خشیت اس کے دل میں جتنا زیادہ ہو
होगी रब का उतना ही बरगुज़िदा बनेगा, उसका उतना ही नजदीकी होगा और रब की निगाह में उतना ज्यादा मुकर्रर करार पाएगा। तो जो पैमाना रखा गया रब्बुल आलमीन की निगाह में, रब्बुल आलमीन के यहाँ बरतरी का, बेहतरी का और बुलंदी का जो मियार रखा गया वो तकवा है, रब्बुल आलमीन से डरने का मामला है, रब्बुल आलमीन के अहकाम की पैरवी को बजा लाने में है और उसके मनहियात को जिससे रोका गया है उससे रुक जाने में है। ये बुलंदी है, ये रुतबा उसको हासिल होगा जो इन चीजों को बजा रहेगा, इन चीजों पर अमल कर रहा होगा कि रब ने जिन चीजों को कह दिया इसको करना है तो उसको करने की कोशिश किया और रोक दिया फला तरफ नहीं जाना है, फला काम अंजाम नहीं देना है, तो फौरन अपने आप को कंट्रोल किया और उससे रुक गया। तो ऐसे शख्स का मकाम है रब्बुल आलमीन के यहाँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, क्या मालूम हुआ कि लिसानी एतबार से और इसी तरीके से इलाकाई एतबार से हम किसी से नफरत ना करें, किसी पर बर्तरी ना जताएं, किसी पर अपने आप को बड़ा ना करवाने। और क्योंकि मैं आपको एक हादसा, एक वाक़या की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी के दौर में मुहाजिर और अंसार को आप जानते हैं कि एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी यानी गुलाम थे दोनों, वो एक जब लगा दिया, एक थप्पड़ उस मुहाजिर शख्स ने अंसारी शख्स को मार दिया और उसने फौरन आवाज लगा दी, ऐ मुहाजिरों, ऐ अंसारियों, मदद को आओ। और मुहाजिर शख्स जो था वो आवाज लगा रहा है, ऐ मुहाजिरों दौड़ो, हमारे साथ आओ, खड़े हो, हमारी मदद करो। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची और अल्लाह के नबी पहुंच गए, वरना तीनों तमाम निकल चुके थे। मुमकिन था कि लोग आपस में झगड़ जाते, कितनों की जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी उस मौके पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी फरमाया, माँ बालू चाहिया, ये तो आवाज लगा रहे हो, जो खसलत है, ये जो फितरत है, ये तो जाहिलियत की है। दौरे जाहिलियत में ऐसा होता था, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की पुकार अपने हमनवाओं को, अपने जो तरफदार हैं उनको पुकार करके, चाहे तुम जो जुल्म ही कर रहे हो, गलत रास्ते पर ही क्यों ना हो, तुम गलत ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तरफदार हैं उनको बुला लो और उनको अपने साथ खड़ा कर दो। ये तो जाहिलियत का अमल है, ये जाहिलियत का अमल है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसको छोड़ दो, इससे किनारा कस हो जाओ, इससे बाद आ जाओ, क्योंकि ये घिनौना अमल है। ये कैसा है? ये अच्छा अमल नहीं है बल्कि घिनौना अमल है, ये बद अमल है, इससे बचा करो। तो ये बात मालूम हुई कि हम किसी नाहिए से हमें एक दूसरे पर फौकियत नहीं जताना है। और आगे चलते हैं, तीसरा मुकाम जहां हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, सब्र का मामला करना चाहिए, वो है कि आपसी तनाजा का हो जाना, आपसी तनाजा हो जाना। जहां इंसान बसते हैं, जहां 10 लोग रहते हैं, वहां कुछ अनबन हो जाती है और ये होना जरूरी है, हो सकती है। इंसान फितरही तौर पे झगड़ालू पैदा किया गया है, उसके अंदर किसी तरह का तनाजा हो सकता है, झगड़ा रोना हो सकता है, लेकिन झगड़े का ये मतलब नहीं है कि उसको हवा दिया जाए और उसमें ईंधन झोंक करके उसको अलाव कराया जाए और उसको भड़काया जाए, नहीं, बल्कि अखलाकियात के नजरिए से नरमी अंदाज में और बेहतर अंदाज में, बेहतर सूरत में उसको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की इताअत करते हो, अगर तुम दावेदार हो कि मैं रब को मानता हूँ, एक रब को मानता हूँ, अगर तुम दावेदार हो इस बात को कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके पैगंबर और रसूल होने पर हम एतमाद और यकीन रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो तुम तनाज़ा ना करो, आपस में लड़ाई झगड़े ना करो। क्या होगा इस सूरत में? फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम कमजोर पड़ जाओगे। क्या होगा? आपस में तनाजा कर लोगे, आपसी मेल जोल को खत्म कर दोगे, तो इसी सूरत में क्या होने वाला है? फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी। हवाएं उखड़ जाएगी तो मतलब क्या है कि तुम किसी लायक भी नहीं रहोगे। जैसे कि पानी पर जो खरपतवार होते हैं, बहते रहते हैं, उसी तरह हो जाओगे। जो चाहेगा जिधर जाएगा बाहर हो जाएगा, तुम्हारी कोई वकात नहीं रह जाएगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, तुम किसी लायक नहीं रहोगे। जो चाहेगा फुटबॉल की तरह तुम्हें खेलता फिरेगा, तुम्हारी कोई वकात नहीं रहेगी। क्यों? ऐसी सूरत में होगा, उस सूरत में होगा जब तनाजा खड़ा कर लोगे, आपसी भाईचारा को खत्म कर दोगे, उसको मरिया मट में
डालोगे तो ऐसी सूरत में यहाँ हाल होने वाला है, तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी, तुम्हारे शेरेदा बिखर जाएगा, तुम्हारी जो कुव्वत है वो सब खत्म हो जाएगी और तुम हर तरफ जलीलो खार होते फिरोगे। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि और जो सब्र करते हैं, सब्र का मामला करते हैं, तहम्मुल करते हैं, बर्दाश्त से मामला करते हैं, वो उसके साथ रब्बुल आलमीन है। और जिसका पासबान, जिसकी मदद करने वाला, जिसकी तारीफ करने वाला, जिसकी हमनवाई करने वाला, जिसके साथ रब खड़ा हो जाए, उसकी कौन बाल बेकार कर सकता है, उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। रब जिसका साथी हो जाए, रब्बुल आलमीन के हाथ में तमाम कंट्रोल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मुद्दा सुना रहा है, ये खुशखबरी दे रहा है, अगर तुमने तहम्मुल का मामला कर लिया, बर्दाश्त का मामला किया, तनाज़ा वगैरह के खड़ा हो जाने के नतीजे में तुमने सब्र से मामला लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा साथ देगा। और देर सवेर तुम्हें हक की जीत होती है, क्योंकि जहां हक व ज़ाकल बातिल, हक आगे रहता है, बातिल का मामला खत्म होते रहता है। हो सकता है कुछ दिनों तक बातिल बदलाए, बातिल खड़ा हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, उसकी जो बुनियाद है वो ढह जाएगी थोड़ी ही देर में। मेरे भाई और दोस्तों, तो मालूम में हुआ कि हमें तनाज़ा के मौके पर तनाज़ा हो जाना ये अलग चीज है, लेकिन उसको हवा देना, उसमें बढ़ोतरी करना, ये बुरा अमल है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से पब्लिक मकामात पर जो आम शाहरा होती हैं, आम पब्लिक मकामात पर होते हैं, वहां सब्र का मामला करना चाहिए, वहां अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि देखने में यह आता है कि लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर फौरन उलझ जाते हैं और अपने आप पर कंट्रोल न रखने की सूरत में मामूली चीज पर फौरन मामला खड़ा हो जाता है और यहाँ तक जान जाने की भी नौबत आ जाती है कि हम जैसे कि हम जा रहे हैं, ट्रैफिक लग गई, जाम लग गया, या एक कि वैसे ही जा रहे हैं, किसी से अनजाने में टच हो गया, या एक कि जाम है उस सूरत में नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कुछ थोड़ी सी जिक हो गई, थोड़ी सी किसी से टचिंग हो गई, उस सूरत में हम अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर ताकतवर हैं तो फौरन हम तेज में आ जाएंगे, आपे से बाहर आकर के और उसको दे मारेंगे और उसको मरिया मेट करने की कोशिश करेंगे कि इसको यहीं पर ना रगड़वा दे। तो ये इस चीज से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहम्मुल से मामला करो, बर्दाश्त करो। ऐसी सूरत में क्या होगा, जब बर्दाश्त करोगे मामला हट जाएगा, वरना इस मामूली नतीजे में न जाने कितना बड़ा अलमिया हो जाएगा और किसी की जान भी जा सकती है और तमाम पब्लिक के सामने किसी को दलील कर देना ये बहादुरी का अमल नहीं है। और ऐसे ही मकामात के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इज़्तिहाम में आम था, लाखों की तादाद से रैना था, जहां देखो इंसान नजर आ रहे थे, हज्जतुल वदा के मौका पर जब आखिरी हज अल्लाह के नबी कर रहे थे, उस मौके पर लोगों को कहा अय्युहन नास अस्सकीना सकीना, लोगों नरमी का मामला करो, धीरे धीरे चलो, लोगों नरमी का मामला करो, सुकून और इत्मीनान से चलो, ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। हमें इस हदीस से पैगाम लेना चाहिए कि हम ऐसे अगर मकामात आ जाए, ऐसे मौके आ जाए, तो अपने आप पर थोड़े से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मामूली कलिमात की वजह से किसी से थोड़ा हो गया, किसी ने न अनजाने में टक्कर ही लग गई किसी से, अगर उसने फौरन अको दरगुजर कर लिया, उसने माफी तलब कर ली, भाई मुझे माफ कर दो, मामला रफा हो जाता है। लेकिन अगर नाक से कर सामने खड़ा हो गया तो मामला बिगड़ जाता है। उस सूरत में अगर वो कमजोर है फिर भी तुम्हारा सीना काम भी खड़ा हो गया, गलती भी की है, उसके बाद सीना जोरी भी कर रहा है, तो अगर हमने अगर माफी तलब कर ली, माफी अगर मांग ली, तो ऐसी सूरत में मामला क्या होता है, हल हो जाता है मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरीके से कि बीवी और मियां बीवी के जो दरमियान मामला होते हैं, कभी अनबन हो जाती है, इख्तिलाफ हो जाते हैं, किसी बात पर शौहर या बीवी उठ खड़े होते हैं, तो ऐसी सूरत में कि शौहर को ज्यादातर शौहर ही, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की ताकत और कुव्वत रखी है कि अगर किसी मामले में बीवी और शौहर के दरमियान अनबन हो जाए, झगड़ा लड़ाई नौबत आ जाए, तो हमें सब्र से मामला करना चाहिए, तहम्मुल और बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मोमिन वला मोमिना, किसी मोमिन को जो ज़ेब नहीं देता, किसी मोमिन के लिए शायद शान नहीं है कि किसी अपनी बीवी को वो बदअंगेज़ता करे, उसको गुस्सा दिलाए, फकिन करिहा मिन्हा खुलुकन, क्योंकि अगर किसी उसके अदा से तुम्हें बुग़्ज़ आ गया, नफरत हो गई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो रज़िया मिन्हा आकर, तो दूसरे कुछ ऐसे औसाफ भी उसके अंदर मौजूद हैं, कुछ ऐसी अदाएं भी उसके अंदर मौजूद हैं जो तुम्हें भाती होंगी,
तुम्हें अच्छी लगती होगी तो तुम उस चीज को अगर एक जो है अदा से नारा हो गए, थोड़ी सी तुम्हें खफकी आ गई, थोड़ी सी तुम्हारे अंदर उससे नफरत उठ खड़ी हुई, तो उसको बर्दाश्त कर लो और दूसरे जो अच्छे अवसाफ हैं उस पर नजरें डाल लो, उसको देख लो, उसको सोच लो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मामला हल हो जाएगा। नहीं तो नौबत आगे जा सकती है और नौबत क्या से क्या हो जाती है आप उसको जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफदार हैं। तो इसी तरह से जो और मकामात हैं कि नाते और रिश्तेदारी, यानी नाता और रिश्तेदारी में जिस तरह से जितनी कुर्बतें होती हैं, जितनी नजदीकियां होती हैं, उतने ज्यादा मामला बिगड़ने के भी मौके होते हैं। तो लिहाजा रिश्तेदारियों में भी हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उसमें हमें कोते बर्दाश्त का मामला करना चाहिए। चूंकि एक हदीस आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम से एक शख्स कहता है, ये आदमी फरमाता है, या रसूलल्लाह असिलुहुम व यक़तऊन, मेरा मामला तो ये है कि मैं रिश्तेदारी छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो काटने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह के आगे फरमाता है कि वह अहसिनुहुम व अहसिनु इलैहिम, उनके साथ मैं अच्छा सलूक करता हूँ, व युसीऊना इलैया, लेकिन वो लोग मेरे साथ की बदी पर तुले होते हैं और मेरे साथ बुरा सलूक का मामला करते हैं। मैं उनके साथ उसने सलूक कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग हमारे बुराई पर तुले हुए हैं। आगे वो फरमाता है कि वो कहता है वाहलिमु अन्हुम, उनके साथ मैं बुराई करता हूँ, उनकी गलतियों को मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वयजहलूना अलैया, और वो लोग नादानी से काम लेते हैं, जहालत को मुकर आते हैं मेरे ताल्लुक से। अल्लाह के नबी ने इसके मुकाबले में ये बात जब सुन ली और उसके बाद फरमाया लइन कुंता कमा कुलता, अगर मामला ऐसा ही है जैसे तूने बयान किया है, जैसे तूने ये बात कही कि मैं फला करता हूँ, मैं फला करता हूँ और वो लोग ऐसा करते हैं, अगर तुम इस पैमाने तुम अपनी बात पे सच्चे हो तो सुनो, फरमाअन्नमा युसिफुहुल मल्ला, तो तुम उसको आपके हमारे जब तक तुम ये मामला करता रहोगे, जब तक तुम इस तरह से पेश आते रहोगे, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम्हारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल होगी और साथ में उसका क्या मामला होगा, उसको अंगारे की तरफ ले जा रहे हो, उसको आग की तरफ ढकेल रहे हो, क्योंकि तुमने बर्दाश्त का मामला किया और उसने तुम्हारे साथ बदसलूकी से मामला किया है। तो ये मालूम होना चाहिए कि हमें रिश्तेदारियों में भी इस तरह के सलूक अपनाने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि ये सिफत, ये अनंत हम जो है खाली नजर आता होगा कि कोई शायद मिसाल के तौर पे भी ना देखी जा सके, कोई ऐसा मामला करता हो, अगर वो किसी ने किसी के साथ भलाई की और अगर बुराई को बुलाया, पता नहीं बर्दाश्त करेगा, तुम फने का होगे, अपने घर के होगे, मैं तुम्हें नहीं बर्दाश्त करता, फौरन से ताल्लुक कर देगा, जाओ तुम उधर जाओ, मैं अपने चलता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो ये सिफत अगर पैदा हो जाए तो मामला बहुत ज्यादा हल हो सकता है और रिश्तेदारियों में हमें जो खटास पैदा हो जाती है और उसमें जो एक तरह से अदावत बढ़ती चली जाती है, उसका मामला खत्म हो सकता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने बतलाया कि सब्र व तहम्मुल का जो मौके हैं उनमें से एक मौका ये भी है कि जो हमारे मातहत हैं, यानी गुलाम हो, नौकर हो, या अभी गुलाम का मामला तो अब न रहा, लेकिन कोई भी नौकर मुलाजिम जो हमारे मातहत में काम करते हैं, उनके साथ भी बर्दाश्त का मामला करना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसी पर इम्तहान होता है कि लोगों में देखने में आता है कि लोग जिससे टकराने में देखते हैं कि उससे नहीं पार पाऊंगा, वहां तो धीमे हो जाते हैं, वहां तो सारी अकल खत्म हो जाती है, लेकिन देखेंगे जिससे कि हम पार पा जाएंगे, जिसको पछाड़ सकते हैं और उसके जो है हंसियां पार कर देंगे और उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, ऐसा सलूक करेंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो हमारे मातहत होते हैं, कमजोर होते हैं, हमारे तहत में है, तो उनकी एक छोटी गलती को भी बर्दाश्त करने की तैयार नहीं होते हैं। छोटी गलती हो गई तब भी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको सरोसितम करेंगे, बुरा भला कहेंगे और तमाशे भी रसीद करेंगे। तो ऐसे मौके पे भी अल्लाह ने भी फरमाया कि तुम्हारे मातहत जो हो, तुम्हारे मातहत में कोई काम कर रहे हैं, वो किसी भी अंदाज से हो, उनके साथ भी सब्र का मामला करो, तहम्मुल का मामला करो। मुमकिन है इंसान है कोई गलती हो जाए तो अफो दरगुजर किया करो। एक मौके पर यूं हुआ कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कि उन्होंने, उसका गुलाम था, कोई गलती हो गई, उसको बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी
व्यक्ति तक ये पैगाम पहुंचता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नका इम्रुउन फीका जाहिलिया, ऐ अबू ज़र तुम तो ऐसे शख्स हो जिसके अंदर इस्लाम लाने के बावजूद भी अभी जिहालत की बू आती है, जिहालत की कुछ सिफत पाई जाती है। उसी दिन अब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अहद पैमान कर लिया, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया कि जो तुम खाओ उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो पहनाओ। और उसी दिन से अबू ज़र ग़िफ़ारी जो पहनते थे वो पहनाते थे, जो खाते थे वो खिलाते थे। ये नबी के पैरोकार थे, ये नबी के पहनाऊंगा। तो इससे इबरत और नसीहत मिलती है। हमारे मातहती में अगर कोई हो, किसी तरह की कोई व्यक्ति सरदर्द हो जाए, हमें बर्दाश्त का मामला करना चाहिए और उस पर हमें हिल्म और बुर्दबारी का मामला करना चाहिए। मैं एक दो बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये तहम्मुल जो बर्दाश्त कैफियत होती है किस तरह पैदा होती है। आप ये जान लिए कि इसके क्या फज़ाइल हैं, किन मौके पर खास तौर से हमें तहम्मुल का मामला करना चाहिए और कैसे जो है हम तहम्मुल करें। तो तहम्मुल यानी बुर्दबारी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल इल्म बित्तअल्लुम, कि इल्म जो होता है वो सीखने से आता है, यानी इंसान जब इल्म सीखेगा तभी इल्म हासिल होगा। वल इल्म बित्तहल्लुम, और जो है बर्दाश्त करने की कुव्वत है, बर्दाश्त करने की जो सिफत है, और इसको जो कैसे होगा कि जब हम बर्दाश्त करेंगे तब तहम्मुल की कुव्वत हमारे अंदर दोबारा होगी, वो बढ़ेगी और परवान चढ़ेगी और उसमें जो है हमें एक तरह से बेहतरी आएगी और तहम्मुल करने की, बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा होगी।